Hello, everyone. Welcome on Dubai Reels, honorable show Aspire to Inspire. In our today's episode, I would like to introduce Ejaz Ahmed. Is a senior from my university and is a very nice, modest, humble, and highly acclaimed professional. Ejaz has a master degree in social work and has over 30 years of experience in working and managing services in England. He's a serial entrepreneur and has an exceptional track record of establishing successfully running multiple businesses in Europe and India. He has an established range of network in healthcare and social care sector, IT industry, and highly successful NRI Indian in United Kingdom. Ejaz has been awarded Bharat Samman Excellence Award in year 2005 and 2017 by the NRI Institute of Significant Contribution in the Field of Social Work and Commitment to the Motherland. The award was presented to Mr. Ejaz by His Excellency Sir Michael Arthur, KCMG, the British High Commissioner of India in United Kingdom in 2005, Sir Raj Paul in 2017. With this introduction, let me welcome a social worker, a businessman, and a humble person, light-hearted personality, Ejaz Ahmed, on my show, Aspire to Inspire on Dubai Reels. So, ladies and gentlemen, students, the youth that I wish to address, keep your eyes on if you're interested to choose your profession as a professional social worker. So let's understand from Mr. Ejaz Ahmed how to become a professional registered social worker and more. And Mr. Ejaz Ahmed is expert and is a now one of the most biggest and famous fostering house in England. So let's understand more about what is fostering, what is life, what is career, what is all about being a professional social worker and a successful businessman starting from nowhere and reaching the successful heights of his own career. So, ladies and gentlemen, let me again take a great pride in introducing Mr. Ejaz Ahmed, and I would request him to share his knowledge, experience, and wisdom with our viewers. Hello, ladies and gentlemen. Welcome on my show, Dubai Real, and today we have with us Ejaz Bhai. Ejaz Bhai, मेरा पहला सवाल आपसे. On a scale of happiness, 1 you are not at all happy, 10 you are absolutely happy. What is that mark that you will give it to yourself? I think I will give myself 10 out of 10. Okay. That's excellent. And what do you think are the important factors of happiness in one's life? As I said earlier, I'm going to give myself 10 out of 10. It means जो factors हैं, सबसे पहले I would say is your family, number one. फिर दूसरी आपकी health, तीसरे आपके जो बच्चे हैं, जो आपके संतान हैं या आपके उनसे आपको हैप्पी. तीसरे जब मैं फैमिली की बात करता हूँ तो उसमें लव भी है, रिलेशन भी है, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, चचा से, ताऊ से, कजिन से, इससे सभी इसमें शामिल हैं. तो इसमें फैमिली इज कंप्लीट फैक्टर. हैप्पीनेस मिलती है आपके अपने करियर से, कि आप अपने करियर में कैसा कर रहे हैं, अपनी जॉब में कैसा कर रहे हैं, अपनी बिजनेस में कैसा कर रहे हैं. हैप्पीनेस मिलती है मुझको खास तौर से मिलती है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा हूँ. तो कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से मेरा मतलब नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी समुदाय की या आपके किसी पर्टिकुलर समुदाय की या हिंदू की या क्रिश्चियंस की. मैं जब बात करूँ तो कम्युनिटी की जिस कंट्री में मैं रहता हूँ पे हर तरह के यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है. दे आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट बैकग्राउंड्स. उनके साथ भी काम करने बड़ा अच्छा लगता है, उनसे भी मुझे हैप्पीनेस मिलती है. और मुझे हैप्पीनेस मिलती है अपने रिलीजन से कनेक्टेड रहने से भी हैप्पीनेस मिलती है. इसलिए मैं लोग स्पिरिचुअल. तो आपको मैं हमें जितने भी हम लोग हैं आपस में अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट रखें अपने मजहब से, अपने रिलीजन से. उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है. आपका दिमाग, आपका दिल, उस पर भी उससे बड़ा फर्क पड़ता है. तो ये सब बहुत सी चीज़, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइफ के अंदर हैप्पी रहने के. ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं. अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्रेडिएंट्स का, या फिर
अपने म्यूचुअल बेनिफिट, हाँ म्यूचुअल भी, और अपने बेसिकली अगर आप हैप्पी हैं तो आप यू पास योर हैप्पीनेस टू अदर्स। सही। लोग बात करते हैं या मैं जिससे बात करता हूँ, so I'm always very excited. Sharing, talking to people, giving them the right advice, guiding them in the proper way. These are all part of happiness actually. Beautiful. You cannot be self-centered actually, just thinking about yourself. क्या मैं अपने बारे में सोचूं बाकी सब भाड़ में जाएं, it doesn't work that way. So make sure if you want to remain happy and would like to be happy in your life, make sure you follow this formula. But also on top of that, you need to be honest and open with people. ये आपको बहुत दूर तक ले जाती है. What you have said is completely in line with the life coaching principle and the tool that which is sold to people is a wheel of life or cake of life that talks about that life is nothing but all about these small little pies in the cake, where all these areas makes it a full, beautiful, happy, successful life. यंगस्टर्स क्या सोचते हैं कि लिए जॉब नहीं मिल रही है, करियर नहीं बन रहा है, डिप्रेशन में चले गए, हेल्थ इफेक्ट हो रही है. दे थिंक दैट जॉब इज देयर लाइफ एंड हेंस दे लूज एवरीथिंग एल्स, और देन दे लूज ट्रैक ऑफ द फैमिली, हेल्थ एंड करियर. सो द बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If there's no balance, the wheel of life is going to get punctured, and then there will be disbalance and unhappiness and lack of purpose in life. लेकिन आपके अगर पंक्चर हो जाए व्हील ऑफ लाइफ में तो आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं. इसलिए ऐसी चीज है लाइफ में, अगर आपके कहीं किसी टायर में पंक्चर हो जाए तो आप रूपा के पास जा सकते हैं, जो बहुत सी कोचिंग भी करती हैं, और आपके पास आ सकते हैं, आप मेरे पास भी आ सकते हैं. और तीसरी बात यह है कि आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिस पे भरोसा करते हो, उसके साथ बैठ के अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, आप उनसे भी अपना जो आपके बहुत क्लोज हो उनसे भी मशवरा ले सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो मेंड योर वेज एंड बिकम अगेन. आप एक ऐसी चीज है लाइफ की कि जिसको आप किसी वक्त भी रिपेयर कर सकते हैं. आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहे डिस्ट्रॉय कर दें, आप इसको अच्छे से ब्लॉसम कर जाए वो कर सकते. तो आपके ऊपर है कि आप अपनी व्हील ऑफ लाइफ को आप कैसे चलाना चाहते हैं. और रूपा के पास सभी तरह के आपको पंक्चर लगाने के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे अपनी लाइफ. And you can like my channel Dubai Real with Rupa Sharma and can get lots of tips. Life coaches, social workers, therapists, psychiatrists, psychologists, ये सारे के सारे लोग हेल्पफुल हो सकते हैं to fix the wheel of life and purpose. उसके लिए आपको ये भी जानना है कि आपको किस तरह की हेल्प की जरूरत है, वो भी आपको मेंटल हेल्थ पे हम बाद में जाएंगे. एजाज भाई, अभी हम आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी को फॉलो करना चाहते हैं. जी. एजाज भाई, कमिंग फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, फ्रॉम सोशल वर्क डिपार्टमेंट to England and reaching the heights of your career, can you please throw some light back on your childhood? कहीं से did you plan your vision of life? Did you just have that clarity in your mind that this is what you're going to do? How did it all start? देखिए, जिसको अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, he works in a very mysterious way. True. हम लोग लाइफ को प्लान करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं. लेकिन अल्लाह ने सारा और गॉड ने आपके लिए सारा प्लान कर रखा है. आपको यहाँ भेजा, अपना कर्म करते रहिए, काम करते रहिए, और काम भी करें ऑनेस्टी के साथ में एंड इंटेग्रिटी के साथ में. जो मिलती है इन सब चीजों की. मैं जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में पैदा हुआ और जहाँ पे मेरे अपब्रिंगिंग हुआ, मैं ओखला में पैदा हुआ, पटला हाउस में पला बढ़ा, और वहीं से अपना हमारा जो सफर था वहीं से शुरू हुआ. सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ में ये रही कि एक कंटिन्यूटी रही लाइफ के अंदर इन टर्म्स ऑफ माय एजुकेशन. तो जामिया में मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ था, और मैं जामिया सोशल वर्क, जो कि आज के ज़माने में बहुत रेयर है कि लोग किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, नर्सरी से पढ़ें और मास्टर्स करके निकलें. मतलब मेरा पूरा चाइल्डहुड, एडल्ट, यंग एडल्टहुड, और उसके बाद एडल्ट, मतलब पूरा जामिया ने एक तरह से जो भी मेरी पर्सनालिटी है, जो भी मेरी आउटलुक है आज की तारीख में, क्योंकि एजुकेशन द यूनिवर्सिटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड द पीपल अराउंड यू एज वेल. तो मैं शुरू से ही, मेरे पेरेंट्स चाहते थे, मेरे वालिद चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं. मैंने अपने लोकल क्लिनिक में वहीं पर कुछ 1-2 साल काम भी किया, डॉक्टर के यहाँ पुड़िया भी बांधी, इंजेक्शन भी लगाए, स्टिचेस भी किए, पर वो मेरे इंटरेस्ट में नहीं था वो.
आई डिड नॉट एंजॉय दैट एट ऑल, क्योंकि मुझे ब्लड देख के अजीब सा लगता था। बहरहाल लेकिन मेरा हमेशा इंटरेस्ट था सोशल वर्क में, और मुझे सोशल वर्क में जब मैं 8th क्लास में था तो जामिया में एनएसएस के कैंप लगते थे। ठीक। उस जमाने एनसीसी भी बहुत मशहूर थी जामिया के अंदर। अब एनसीसी काबिल तो अपनी बॉडी थी नहीं, बंदूक भी नहीं उठती, दुबले पतले से थे। हमने कहा भाई हमारे मतलब की नहीं, हम तो भाई एनएसएस में जो समाज सेवा है वो करेंगे, नेशनल सर्विस स्कीम में। और उसमें फिर हम कैंप वगैरह लगाते थे, विलेजेस वगैरह में जाते थे, लोगों के साथ काम करते थे। तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ओके एनएसएस, और वहीं से फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। ओके। और उसकी एक ये भी वजह रही, जो मेरे मेंटर थे मिस्टर एस कोहली, जो जामिया के प्रोफेसर थे सोशल डिपार्टमेंट में, उनका काफी कनेक्शन था स्कूल से भी, स्कूल से बच्चों को एनकरेज करते थे, और उनकी भी काफी सपोर्ट रही मुझे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप, ऑनेस्टली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं इसी तरह से चलता रहा अपना। मैंने फिर देन आई डिड माय सोशियोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम जामिया, एंड आफ्टर दैट आई ऑफ कोर्स दैट्स द नेक्स्ट नेचुरल रूट था कि मैं सोशल वर्क में जाऊं, क्योंकि वही मेरा इंटरेस्ट था। और उसके लिए मेरे कोहली साहब ने भी मेरे लिए काफ़ी मदद की, मेरे एडमिशन से लेकर मुझे सपोर्ट से रिलेटेड। तो मैं आज भी उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा लाइफ टाइम। एंड आई स्टिल टाइम टू टाइम गेट इन टच विद हिम, inquire about his health and so on. He's retired now, but may God bless him. He's very well connected. Still, he replies to messages and. Yes, he is actually. Yeah. But वो हमारी कई बार लाइफ इतनी बिजी हो जाती है अपने बच्चों में और अपने उसमें कि हम इतना टच में नहीं रह पाते एक दूसरे के, लेकिन we should always acknowledge the people who actually help you in your life, and it's very important. And thus you need to be connected with your roots all the time. Coming from there, from sociology to masters in social work. So can you please bring some light on this notion that mostly people until now, मुझे लगता है कि सब लोग ये समझते हैं, मेजॉरिटी एक जो है वो समझती है सोशल वर्क करके बच्चा पैसा नहीं कमा सकता, और या तो ये फिर बहुत थैला लेके कम्युनिटीज में घूम रहा होगा। तो एक चैरिटेबल सोशल वर्क की एक इमेज से प्रोफेशनल मनी मेकिंग सक्सेसफुल बिजनेस, आप कैसे कन्विंस करेंगे किसी को ये बताने के लिए अपने बच्चों को सोशल वर्क में डालना इज ओके एंड इट्स अ प्रोफाउंड प्रोफेशन? भाई देखें, अगर कोई खाली सिर्फ मनी के लिए आ रहा है इस प्रोफेशन में तो नहीं आया तो अच्छी, सिर्फ मनी के लिए नहीं। ओके, वेरी गुड। ये आपको बहुत पहले इस दिमाग में ये डालना है, जो भी काम करें, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, सोशल वर्कर, फर्स्ट यू नीड टू गेट दिस आउट ऑफ योर हेड कि हमें जो है इस काम करके हम इतना आपका पहले इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बता, बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी। हमने पहले हैप्पीनेस की बात की थी ना, उसको याद रखिए। उसके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है और अपनी बिजनेस का भी सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। जो भी काम करें अपनी हैप्पीनेस के लिए करें, जिसमें कि आप खुद खुश हो, और अपने बच्चों को भी वही काम करने दें जो वो उसमें खुश रहें। On this note, Ejaz bhai, allow me to add, because now I am handling a counseling function, और आज ऐसे कुछ कई सारे लोग निकल के आते हैं जो पूरी लाइफ टाइम स्पेंड करने के बाद then they regret कि I wish I was a singer, I wish if I was an artist। तो ये बहुत यार, एक विश तो मेरी भी रूपा, एक विश तो मेरी भी रही लाइफ के अंदर कि मैं एक्टर बन जाता। एनएसजी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करना चाहता था। तो आप अभी प्रोड्यूस कर लीजिए पिक्चर, हम डायरेक्ट करवा देंगे। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी सबकी विश होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल हैव टू बी रियलिस्टिक विद लाइफ। लाइफ में और एक रियल लाइफ में डिफरेंस है, ठीक है ना? वी वर टॉकिंग अबाउट दैट चार्ट दैट समथिंग इज ऑफ योर इंटरेस्ट। मेरा जो देखा, इंसान को जो इंटरेस्ट है वो काम करे पहले तो, चाहे कुछ भी काम हो। फोटोग्राफर हो, देखें पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम इसलिए नहीं, हमने ये प्लान किया था कि हम यहाँ बैठे होंगे, सक्सेसफुल अपनी बिजनेस चला रहे होंगे लंदन में बैठे हुए। नेवर प्लान एनीथिंग। हर चीज जो है मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि सब ये एवरीथिंग इज अल्लाह डिसाइड ऑल दोस थिंग्स फॉर यू। समझे? आपको ऊपर वाला डिसाइड करता है। हम तो यहाँ पे खाली एक काम करते हैं, मीडियम है, अपना काम करते रहे, ऊपर वाला गाइड करता रहता है आपको ठीक ठाक करा जाए। तो इंटरेस्ट पहली चीज रही करियर को मूव फॉरवर्ड करने के लिए। पहले इंटरेस्ट हो, फिर ये हो कि आपका जो इंटरेस्ट के साथ साथ जो है
आप ये भी देखें कि आपके लिए वाकई जो आप करना चाहते हैं कि नहीं है, अपनी भी नो अबाउट देयर ओन लिमिटेशंस और अपनी शॉर्ट कमिंग्स अगर किसी को पता हो कि भाई मैं इसको ये नहीं कि खाली कि मेरे बाप ने कहा है या मेरी माँ ने कहा है या मेरे रिश्तेदार ने कहा है या मेरे पड़ोस के लोग कर रहे हैं। आजकल बहुत सी जगह मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं भाई अज्जी वाला कोर्स कर लो। क्या तो मैं कई जगह ये भी लोग मैं जानता हूँ कि लोगों ने रिफर किया है कि मैंने भी क्या करा तुम्हारे बच्चे ने, अज्जी वाला कोर्स क्या है। अज्जी से मेरा बचपन का नाम है, इसमें लोग कहते हैं अज्जी वाला, मतलब ये हुआ क्या भाई सोशल वर्क में मास्टर। तो कॉपीकैट ना हो, इंटरेस्ट की चीज फील्ड में जाए। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। खाली आप यह नहीं देखें कि भाई के रूपा का जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी यही कर लूं। चाहे इंटरेस्ट है नहीं है उसमें, आपकी एबिलिटीज है नहीं है या आप कैपेबल है नहीं है जो रूपा काम कर रही है, लेकिन ये सोच के रूपा जो है इससे बहुत पैसे कमा रही है, रूपा करके वैसे करके, तो ये वन शुड नॉट लुक एट दैट वे। वन नीड्स टू लुक एट अपने अंदर देखना है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए, अपनी लिमिटेशंस एंड इंटरेस्ट एंड देन पिक अ करियर। लेट्स से किसी का इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, प्रोफेशन पिक भी कर लिया है, नाउ दे आर मास्टर्स इन सोशल वर्क, हाउ यू वुड एडवाइज दीज यंगस्टर्स टू हैव देयर करियर्स ओवरसीज? कैन यू प्लीज थ्रो ओवरसीज के लिए तो ये है कि आपका जो है 2-4 चीजें जो आप बहुत ख्याल रखें। एक तो आप ओवरसीज में जब भी कभी अप्लाई करें, बहुत से लोगों को हमारे पास एप्लीकेशन आती है, उसी से आप हमारे भी अप्लाई कर सकते हैं। रेनबो फॉस्टरिंग सर्विसेज में वी ऑलवेज रिक्रूट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर एक्चुअली आई वुड से। हमारे हम साउथ अफ्रीका से भी रिक्रूट करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, यूरोप से भी आने वाले हैं आपके पास बहुत जल्दी, इंडिया से भी रिक्रूट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में वो है, आई वुड से एक्स फैक्टर, ठीक है ना? प्लीज डिफाइन दिस एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब ये है कि आप जो है एनर्जेटिक हैं, मोटिवेटेड हैं, आप पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन, उसके साथ साथ टॉप होना चाहिए आपकी ऑनेस्टी। जितने आप ऑनेस्ट होंगे हम लोगों के साथ में, जितना ऑनेस्टी के साथ आप बताएंगे, हम बहुत से सीवी आते हैं समझे, उसमें लोग बहुत अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि मैंने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया। जब हम वहाँ पे फोन करते हैं उन जगहों पर, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हम वी ऑलवेज चेक आउट पीपल रेफरेंसेस एंड थिंग्स। जब हम वहाँ फोन करते हैं उनको पता भी नहीं होता कि कभी यहाँ काम किया है कि नहीं। So whatever your application, make sure is everything is backed up by the evidence. You can't lie on your CVs. You can't tell the porcupines or stories to us or any of your employer. Okay? Sure, अगर आपको कहीं पे भी काम करना है, चाहे यूके में काम करना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल वर्कर्स की शॉर्टेज है, कनाडा में भी शॉर्टेज है सोशल वर्कर्स की। आप कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में भी काम करें, फर्स्ट थिंग you should behave with honesty and integrity। क्या हम अगर आपके पास वो है, आज हम यहाँ बैठे हैं इस पोजीशन के अंदर कि जहाँ हम मोर देन 200 और 300 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ पर ऑफिस में, जहाँ जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, क्या हम जो ऐसे काम नहीं कर रहे, या हम यहाँ ऐसे नहीं पहुंच गए। हार्ड वर्क है, हमने इसके लिए खून पसीना बहाया है, इसके लिए हमने इतनी मेहनत की है कि हमने कभी सबसे बड़ी तो हमने हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारा जो अपनी वो है एक्स फैक्टर, आई वुड से हमारी ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी जो हमारा एक्स फैक्टर है, और वही हमें आज यहाँ लाके बैठाया। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा लोग 10 लोगों से अगर आपने कुछ बुरा किया तो बात करेंगे, कोई आपके 10 लोगों से तारीफ नहीं करेगा जाके बैठ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एयरलाइन के साथ में, एमिरेट के साथ में, क्वांटस के साथ में, ब्रिटिश एयरवेज के साथ में कोई गलत एक्सपीरियंस रहा है, एयरलाइन के साथ में, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ में, किसी भी एयरपोर्ट पर, आप 10 और 50 लोगों के साथ बात करेंगे, यार मैं था, ये हुआ, वो हुआ, समझे? तो अच्छी बात कोई नहीं करता। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी बात करके पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अपना साहस ना छोड़ें और मेहनत के साथ काम करते रहो, ईमानदारी के साथ। चैनल क्या हुआ, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? इज देयर एनी लीगल रिक्वायरमेंट? व्हाट आई नो, सोशल वर्क इज अ कंट्रोल प्रोफेशन। आप जो है लीगल रिक्वायरमेंट तो ये है आपकी यहाँ पर, एक तो आपको सबसे पहले आइल्स का, मेरा ख्याल है आइल्स का इंग्लिश का वो पास करना पड़ेगा आपको टेस्ट इंडिया में, बेसिक के थ्रू, मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस है उसका, लेकिन उसके बाद आपको एक सोशल वर्क इंग्लैंड है यहाँ पर, के साथ में आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो सोशल वर्कर है यहाँ पर, वो जो भी यहाँ पर सोशल वर्कर है वो लाइसेंस सोशल वर्कर है। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है इंडिया के अंदर या दुबई में या यहाँ पर यूके के अंदर, दे हैव टू हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इसी तरह यहाँ पे भी रजिस्टरिंग बॉडी है, उसका नाम है सोशल वर्क इंग्लैंड।
आप उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, समझे। फिर उसके बाद जो है यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर पोजीशंस इन Even in Dubai, they have started. It's a licensed profession now in Dubai as well. been going on in Dubai for now I think almost 10 years. Community Development Authority में रजिस्टर करवाना पड़ता है. CDA है, मुझे पता है दुबई के बारे में. I don't know what the scope is there, but in UK के लिए जो है they following the same procedure. I've looked at their registration process. Basically they copied from UK, no difference. So thank you for this information. I'm sure this is going to be instrumental for many. Ejaz bhai, at what point you started thinking of expansion, coming from a social work need and desire and into fostering business? Tell us something about your fostering portfolio. How to make a difference? I have not planned this way, to be honest with you. As I said to you earlier, it is all in God's hand. अल्लाह के हाथ में सब कुछ. मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया कि मुझे ये करना है, मेरे इतने ऑफिस होने चाहिए, इतने एम्प्लॉय होने चाहिए, इतना बिजनेस होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए. अगर आप मेहनत के साथ काम करते रहें, ईमानदारी के साथ काम करते रहें, आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं. तो हमारी जर्नी थी, आई स्टार्टेड एज सोशल वर्कर हियर, एज ए वॉलंटियर एक्चुअली. CSV एक होता था, कम्युनिटी सर्विस वॉलंटियर इन यूके में. तो उनके साथ में आया था 1991 में. तो मैं वॉलंटियर काम करता था एज ए वॉलंटियर कैपेसिटी में. I was working with old people to start with, and I started working with young people. And I think remember 44 pound मिला करते थे हफ्ते में. And I have to, even they have provided me the accommodation to live, but I have to buy all my food and everything in that money. And I lived that money on 1 year actually, on 44 pound. हम उसमें से भी बचा लेते थे. हम उसमें ऐसे बचा लेते थे कि हमारी जो बैकग्राउंड है, जहाँ से हम आए हैं, मेरे वालिद कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो टीचर, माय मदर वाज अ हाउसवाइफ. हमें उसमें से बचाना पड़ता था, और उसमें से हम जो घर से पैसा लेकर आए थे वो भी वापस भेजना था हमको. जो यहाँ पर हमने जो खर्च करते थे वो हमारी वही इनकम हो करती थी. 1 साल पर हम उसके साथ रहे. फिर उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह इन वेरी फर्स्ट ईयर आई हैड 3 जॉब्स. इस तरह काम करते रहे. लेकिन आई वाज इन इंडस्ट्री, वर्कड एज ए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर. Sir, a number of different positions in different departments. How many years you were in service? You were serving other organizations. How many years? मैं यहाँ मेरे ख्याल से मैंने 7-8 साल काम किया होगा उन लोगों के साथ में. And when did you exactly start? I mean, your Rainbow हमने start किया 1998 में. We are running now almost, I think over 23 years now. 23 years. तो अब 23 साल से हम अपनी संस्था को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन. और आपकी संस्था ने कितने मासूम बच्चों के लिए फोस्टर पेरेंट्स और फोस्टर केयर प्रोवाइड की है? must be thousands में होंगे नंबर्स, क्योंकि हमारे पास आते हैं बच्चे, जाते हैं. आपने फोस्टरिंग रिलेटेड एक एकेडमिक कोर्स भी जामिया के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया था. आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं. हमने जब जनाब तलत साहब वहाँ के वाइस चांसलर थे, और वहाँ पे अर्ली लर्निंग सेंटर था, जुबैर मिनाई के साथ में हमने वहाँ पे शुरू किया था. उनके साथ में we were only providing the technical support to them actually. And because of the legislation in India, Juvenile Act, and so many hurdles in India actually to start any of those programs, it was not compatible with the kind of program we run here. So यहाँ पर काफी less bureaucratic है, और of course we are all inspected here. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, यहाँ पर एक बॉडी है ऑफस्टेड. they rate you, and is appointed by Her Majesty Queen actually. Is a serious business actually when you're working in the children sector here in this country, or any sector in this country anyway. Is everything. We work within the statutory framework actually, which means there are certain laws which we have to abide by. If we don't, then we are breach of law. So काफी sensitive है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें कि बच्चे they come to our attention because of sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, neglect, and then we get a lot of asylum seekers as well who come to the country to escape from the torture and other things, and the war and so on. तो हमारा जो काम है इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, कि जिसमें कि हम जो है लोकल काउंसिल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं. जो बच्चे, जो मैंने अब आपको नंबर ऑफ रीजन बताया, वो हमारे केयर में आते हैं, और उनको हमारे फॉस्टर केयर जो हैं लुक आफ्टर करते हैं अपने बच्चों की तरह.
आपने मेरे ख्याल इंडिया से कनेक्टिंग कर रहा था आपने, कि आपने हमने वहां पे इंडिया में आपने एकेडमिक प्रोग्राम चलाया था जामिया मिलिया इस्लामिया के नहीं साथ। था, इज मोर लाइक वी वर प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सपोर्ट टू द early child development center actually there in India. Coming back to our inspirational journey and role, जी, do you have now any vision way forward? But before that, please very quickly if you can just throw some light, आपने social work के अलावा different business projects भी शुरू करे IT से related, and then some halal food service, some अब ये diversification का कब कैसे सोचा, और how well you are doing in those businesses, and these expansion plans कब कैसे करने चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ। मैं सबसे पहले बात ये बताऊंगा मैं लोगों को कि आप वही काम करें जो आपको आता हो. Okay. Don't burn your fingers in other stuff. If you don't know, don't do it. Okay. हमने, रूपा ने कहा, मैंने और बिजनेसेस भी किया है और कर ही रहा हूँ अभी भी. तो जैसे हमारा एक आईटी का बिजनेस है, एंड सॉफ्टवेयर टू बहुत सी सोशल केयर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, केयर होम्स वगैरह में हम सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं. उसका नाम है ई केयर. ठीक है, आई थिंक इज इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली, एंड वो सॉफ्टवेयर हम अपनी बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो हमें बिजनेस के लिए जरूरत थी तो हमने सॉफ्टवेयर, और हमने कहा भी तो हमारा तो काम चल ही रहा है, इससे हमने इतने लोगों को कर रखा, फिर अपनी वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स आ जाती हैं, दिमाग माइंड सेट आ जाता है. Why don't we go out and sell it to other people? Okay. But always start what you really good at. तो at least you need to have a domain expertise. Okay. आप भी सॉफ्टवेयर भी तभी बनवा सकते हैं किसी से, जो हमारी टीम है पूरी बैंगलोर में बैठी हुई, जब आपको पता हो आप चाहते क्या है. हमें जैसे अपने प्रोफेशन में डोमेन एक्सपर्टीज है, इसलिए एबल टू मेक द सॉफ्टवेयर और प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर और राइट द सॉफ्टवेयर. हम जो है द राइट टीम एंड पीपल आर राइटिंग. ठीक है, इसी तरह करियर में कुछ करना चाहते तो वही काम करे जो आपको आता है. देखिए, मैंने तो halal.com स्टार्ट किया था ऑनलाइन बिजनेस के. मैंने उसका to make that business invested a huge amount of money. Actually, we have a 50 people office in India and everything. Spent God knows how many crores actually in that project. It failed because I did not have the expertise in that area. या तो आप मेरे अनुभव से सीख लीजिए, मेरे एक्सपीरियंस से, या फिर अपने पैसे खर्च करके सीख लीजिए. मेरे आपको यही कि आप जो भी काम करें वो करें जो आपको आता हो, और उसी में पैसा भी अपना लगाइए. खाली ये देख के नहीं कि रूपा और एजाज भाई जो हैं ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने. ठीक है ना, तो हम भी कर सकते हैं. अच्छी बात है, इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, लेकिन आप इंस्पिरेशन वो ढूंढे कि भाई रूपा और एजाज या कोई दूसरा तीसरा जो है, उनकी और दूसरी स्ट्रेंथ क्या है कि जिसकी वजह से वो आज वहाँ बैठे हैं, जो जहाँ बैठे हैं वो आज. ठीक है ना, फिजिबिलिटी स्टडी इज इंपॉर्टेंट. अपना आप उसको कोई भी टाइटल दे लीजिए, आसान ज़बान यही है कि भाई काम वही करो जो तुम्हें आता हो. Thank you very much for this wise note. Ejaz, why do you have any regrets? Rupa, I have no regrets in life, to be honest. Alhamdulillah, God has been very kind to me. I have a good family, good business, good people around me, good friends, good neighborhood, good community, everything. Alhamdulillah, I cannot say thanks to my God actually, my Creator actually. So, my life, Alhamdulillah. Very, very nice and beautiful space to be in actually. Alhamdulillah. When they say if you are living in a space of a gratitude, this is as if you have served the purpose of your life. Alhamdulillah. I can't actually, I'm very blessed, I must say that. And I think blessing comes, also एक बात और ध्यान रखिए लाइफ में. If you have a parents, look after them. Take their blessing. What a beautiful thing. जो आपके जो खजाने की चाबी, अगर मैं आपसे कहूँ कि रूपा यहाँ 5 बिलियन धर्म रखे हुए हैं, ये चाबी लो और चली जाओ, तुम फौरन भागी जाओगे, दूसरा भी जाएगा, किसी को भी, नॉट ओनली यू, एनीबॉडी आ से, तुम दिस इज जो ट्रेजर की है आपके पास, आप इसको लेके जाइए, वहाँ पैसे रखे, आप फौरन जाएंगे लिए. माँ बाप जो है आपके, वो भी एक ट्रेजर, आपके खजाने की चाबी. अगर आपने उनको सही से ट्रीट किया, उनको लव दी, रेस्पेक्ट दी, उनका ख्याल रखा, लिमिट मैन. मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आई ऑलवेज टुक केयर ऑफ माय पेरेंट्स. और मैं खाली कह नहीं रहा, मैं इसको करा भी है. अगर आपने उनका ख्याल नहीं तो ऊपर वाला भी आपका ख्याल नहीं रखेगा. तो इस बात को रिमेम्बर कि किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, गीता, कुरान, कोई भी चीज आप ले लीजिए, सब में लिखा हुआ है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें. और स्पेशली
when at that time of their need, जैसा उन्होंने आपका ख्याल रखा जब आप नेपी में थे, समझे ना, और आपको खाना खिलाते, तो उनकी नीड्स भी वही हो जाती हैं ओल्ड एज में। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि अपने पेरेंट्स का, अगर इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मैं आपके मंत्रा दे रहा हूँ लाइफ का, आप ले लें या ना लें, मर्जी आपकी, लेकिन इस फॉर्मूले को जरूर अपना लें। Thank you very much, Ejaz bhai. And on a final note, from here, where do you see yourself in coming 10 years? What is your purpose of your life from now, from here? Purpose in my life? Yes. Purpose, भाई अब माशाल्लाह से अब I'm almost 55 now. मैं अभी 55 साल का होने वाला हूँ। मेरा यही है, मेरा जो नेक्स्ट 10 years का ये है कि मतलब अपनी बिजनेस जैसा हमारा चल रहा है माशाल्लाह, इसको चलाते रहें, इसको एक्सपेंड करें। I'm here to get early retirement or this and that nonsense. आपकी बॉडी में दम है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फैमिली आपके साथ में है, you can do anything. One thing also, if you really want to get inspired, you need to make sure there's a peace in your family. अगर आपके घर पे पीस है, आपके बच्चों में प्यार है, आपके हस्बैंड वाइफ में प्यार है, मोहब्बत है, अच्छे रिलेशंस हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, आप कोई भी हाइट को अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास इस डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको इस तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यू कैन गो वेरी फार इन योर लाइफ, समझे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप काम करें अपनी फैमिली को पहले रखें आगे। आपके घर में सुकून है तो आपकी लाइफ में बाहर सुकून है। हम यहाँ आते हैं तो हमें फैमिली की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती, या हमें अपनी वाइफ की फिक्र नहीं होती, या अपने किसी और की फिक्र नहीं होती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन टच विद देम, वी सपोर्टिंग देम, और वहाँ पे पीस है। क्योंकि अगर वहाँ पीस नहीं तो हम यहाँ क्या कर लेंगे। आप मेरा आधा घंटा मैं पूरा दिन इसी में निकाल दूं घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए, तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें और साथ में अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। I think यहाँ से हमारा एक different conversation in next episode can move on to spirituality and the family affairs, therapy and sessions. Thank you very much, Ejaz bhai, for joining us today. It was wonderful conversation, different aspects, different scenarios. I'm sure हमारे viewers ने बहुत कुछ जाना समझा होगा, ना सिर्फ सोशल वर्क के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इंसानियत के बारे में, व्हील ऑफ लाइफ की होलिस्टिक एक जो रेसिपी है आपने वो पेश की है। शुक्रिया बहुत बहुत। और आपकी तरफ से फाइनल नोट अगर कुछ आप कहना चाहते हैं मेरे लिए प्लीज। रूपा आपने जो शुरू किया है, आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ओनली थिंग वी कैन विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस get a lot of support from the community, from the people in Dubai and India as well. और मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल पे, और हम तो खैर एक इतने बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आप हमसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को यहाँ लेकर आइए, इंशाल्लाह बहुत लोगों को सीखने को मिले। इसीलिए ये शो कराए कि एक रियल एट्रीब्यूट निकल के आए, क्वालिटीज लोगों को पता चले कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ टू थ्राइव ऑन। खाली इसलिए मैं कहता हूँ दौलत और शोहरत पे इंसान को खाली फोकस नहीं करना चाहिए लाइफ में। और मैं यही चाहूंगा कि आप रूपा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे टच में रहें, और इनको हमेशा जो है आप लोग फोन करते रहें जब भी कोई परेशानी हो, कोई भी कुछ हो। ये दुबई की क्वीन है हमारी। थैंक यू सो मच रूपा, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप your channel will grow like anything, and मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। Take care and bless you all. Thank you so much.